बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम विजन 5 एक नई बुक इंग्लिश की स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बड़ा ही मशरक़ी और सुलझा हुआ लिटरेचर है बच्चों की इंग्लिश की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए। यूनिट 1 इसका हम कर रहे हैं, इसका नाम है फ्रेंडशिप। इससे पहले हमने वीडियोस बनाई विजन 3 बुक से, बच्चों की माशाल्लाह इंग्लिश इम्प्रूव हुई, लेकिन इनकी रीडिंग में भी डेफिशिएंसी है, लिहाजा आई डिसाइडेड दिस टाइम आई विल ओनली रीड दिस बुक। मैं सिर्फ इसको रीड करूंगा, इस चैप्टर को, और एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा। एक्सप्लेनेशन वीडियो के आखिर में बताएंगे इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट। आसिफ, जुनेद एंड वक़ार thought themselves lucky. Full stop. After a tiring exam, they were enjoying their holidays in the Kagan Valley. Lush, tall, green pine trees surrounded their rest house. It seemed out of this world. Each each morning at Fajr, they woke up to the smell of fresh, unpolluted mountain air and the sound of singing birds. They resolved to engage in activities that would enable them to observe and appreciate the natural wonders created by Allah subhanahu wa ta'ala. From fishing to trekking, and from mountain climbing to swimming and collecting pebbles, they planned it all out. On a beautiful sunny morning, it was fishing time in the river Kunhar. As they were leaving with their fishing rods, the caretaker of the rest house warned them to fish in a safe area where fishing was permitted. As they approached the mighty river, the fascinating sight and the deafening sound of River Kunhar made them spellbound. Waqar began to recite the Quranic ayah their science teacher had referred to when discussing the water cycle. And he is who and he it is who has spread out the earth and placed therein firm hills and flowing streams. Walking along the river, they enjoyed the soft sand as it trickled between their toes. Soon they came across a large rock protruding in the water. It seemed just the right place for fishing. They began to unpack their gear. As the fisherman walked by, the three boys greeted him. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, he replied. Seeing their fishing rods and bait box, he said, I wouldn't advise you to fish here. The current in this area is very strong. He walked off further down along the river bank, saying, It is not at all a safe place for fishing. Let us find another place, suggested Waqar. Asif and Junaid frowned. Let's stay here. The water is so calm and peaceful, said Asif, ignoring the warning. Look, there are so many fishes swimming here, shouted Junaid in excitement, pointing at the water as he sat on the rock. Asif joined him. Waqar reluctantly sat beside him. Bismillah, recited the three friends. Bismillah, recited the three friends as they tossed their fishing lines in the water. Within within a few minutes,
Junaid felt a strong tug on his line. I think I've caught a big one. Give me a hand, he shouted excitedly. Together they hauled the big trout out of the river. As Junaid stepped back to get the bucket to put the fish in, his foot slipped on the wet rock. Before Waqar or Asif could do anything, Junaid fell into the river. He tried to grab on to the rock, but it was too slippery. The strong current the strong current swept him away from the rock. Help, help, screamed Junaid in fear, while trying to keep his head above the freezing water and fighting in vain against the strong current. As Asif and Waqar watched in horror, Junaid's had disappeared for a second and again popped up on the surface a little down the river. He was gasping for air. "Help!" yelled Junaid as the strong current pulled him back into the water. Waqar acted swiftly. He opened his bag and grabbed a rope, trying hard to recall what his scout instructor had demonstrated in the water safety class last term. He tied one end of the long rope around his waist in a slip knot and gave the other end to Asif. Tie it tightly around the tree trunk, he instructed him, pointing towards a tree. Asif complied quickly. Luckily, Junaid had managed to catch hold of a thin tree branch hanging over the river. Waqar swam with long, strong strokes towards him, praying all the while that the branch would hold his friend's weight. The water was freezing cold. Waqar could feel cramps in his leg muscles. Waqar reached Junaid just in time. As soon as he seized his friend's hand, the branch cracked and fell into the water. Junaid was trembling with cold and fear. Waqar held him tightly and comforted him while Asif pulled them out of the water towards the river bank. The two men two men who were watching ran to assist Asif in hauling them out. Junaid was in a daze and shivering uncontrollably. Quickly, the two men laid him down on his back. One of them placed his shawl over Junaid to warm him. Waqar pressed his abdomen to pump out the water he had swallowed. As Junaid recovered slowly, one of the men turned towards Asif and Waqar. "Why were you fishing here? Didn't anyone tell you it wasn't safe?" he asked them. Asif looked at Waqar regretfully. "We are sorry, we are sorry," Waqar said, saving his friends from embarrassment. Junaid was relieved and thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that he was safe. He would always remember how his friend Waqar had risked his own life to rescue him from the roaring river. थैंक्स वेरी मच। तो यहाँ तक हो गया हमारा पूरा रीडिंग। अब हम इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं क्विकली।
कि ये इस चैप्टर में क्या बात हो रही है दरअसल, और ताकि आपको वर्ड मीनिंग्स और इसकी पूरी फुल अंडरस्टैंडिंग आ जाए। अच्छा, इसका पार्ट वन है। आसिफ, जुनेद एंड वक़ार, ये तीन दोस्त थे। थॉट का मतलब सोचा। देमसेल्व्स लकी, उन्होंने अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत जाना या समझा। आफ्टर अ टायरिंग एग्जाम, बड़े थक, टायरिंग कहते हैं कोई भी चीज टायरिंग लगा दें उसके बाद, इसका मतलब थका देने वाले इम्तिहानात के बाद, आफ्टर का मतलब बाद। दे वर इंजॉइंग देयर हॉलीडेज, तो थका देने एग्जाम के बाद वो लोग अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे थे इन कागान वैली। कागान वैली में, जो नॉर्थ में है ना, केपीके के अंदर है कागान वैली, बहुत जबरदस्त है। लश, टॉल, ग्रीन, घने और ऊंचे और हरे भरे पाइन ट्रीज जो हैं, सराउंडेड देयर रेस्ट हाउस। तो वो किसी रेस्ट हाउस में रुके हुए थे। रेस्ट हाउस कहते हैं मोटेल टाइप की जगह होती है रेस्ट हाउस, जहाँ पर क्या नाम है, जाके क़याम करते हैं ना, रेंट हायर कर लेते हैं वो जगह, होटल टाइप की। तो वो जो था रेस्ट हाउस, वो लश टॉल ग्रीन पाइन ट्री से पूरा घिरा हुआ था। सराउंडेड मतलब घिरा हुआ था चारों तरफ से। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, सीम्ड जब भी आ जाए लग रहा था। इट सीम्ड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब ये इस दुनिया का मामला नहीं लग रहा था। आउट मतलब बाहर, इस दुनिया से बाहर की चीज लग रही थी। ईच मॉर्निंग यानी कि हर सुबह, एट फजर यानी कि फजर के वक्त, दे वोक अप, वो लोग उठते थे, टू द स्मेल ऑफ फ्रेश, वो खुशबू के साथ उठते थे जो तरोताज़ा और बगैर पॉल्यूशन वाली, अनपॉल्यूटेड माउंटेन एयर, पहाड़ों की बगैर पॉल्यूशन वाली हवा, एंड द साउंड ऑफ सिंगिंग बर्ड्स, और चहचहाना जो है परिंदों का, वो उनके साथ उठते थे। They resolve to engage in activities that would enable them to observe and appreciate the natural wonders created by Allah subhanahu wa ta'ala. They resolve to engage, वो मतलब बिल आखिर कामयाब हुए, या उन्होंने हल निकाल लिया कि वो अपने आप को इंगेज करें। इंगेज करने का मतलब मसरूफ करें। इन एक्टिविटीज मतलब ऐसी चीज़ों में या ऐसी हरकत में जो उसे, दैट वुड इनेबल देम, जो उनको इस काबिल करे। इनेबल का मतलब काबिल करना है, देम मतलब उनको, टू ऑब्जर्व, कि वो अच्छी तरह महदूद हो सकें और जस्ट कर सकें अपने अंदर, और उसकी तारीफ कर सकें। एंड अप्रिशिएट मतलब तारीफ कर सकें और उसको बहुत ज़्यादा सराह सकें। अप्रिशिएट करना, सराहना। द नेचुरल वंडर्स, जो कुदरती हैरान करने वाली चीज़ें, वंडर्स कहते हैं अजूबों को, सही है। कुदरती, उनके लिए तो अजूबे थे क्योंकि वो वहाँ पे कागान वैली में तो नहीं रहते ना, वो शहरी लोग थे। तो उनके हिसाब से वो कुदरत के शाहकार और कुदरत के अजूबे थे, क्रिएटेड बाय अल्लाह, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाए थे। फ्रॉम फिशिंग टू ट्रैकिंग, यानी कि फिशिंग कहते हैं बेटा मछली पकड़ने को, और ट्रैकिंग कहते हैं पहाड़ों के ऊपर चलना या ऊंची नीची घाटियों के ऊपर ना रास्ता निकाल के ऊपर जाना, सही है। उसको क्या कहते हैं बेटा? ट्रैकिंग। TREKKING, ट्रैकिंग कहते हैं। फिशिंग आपको पता है मछली पकड़ने को, जो डंडा होता है कांटा, बहुत कदीम तरीका है ये, सही है। एंड फ्रॉम माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ों के ऊपर चढ़ना, टू स्विमिंग मतलब तैराकी करना। ओह, बंद कर क्यों? अच्छा, दे प्लान्ड इट ऑल आउट, दे प्लान्ड इट ऑल आउट, ये देखें ऑल आउट आखिर में आ रहा है, अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये पूरा जुमला ना, प्लान्ड इट ऑल आउट, ये जब जुमला ऑल आउट के साथ लिखा है था, इसका मतलब उन्होंने सब कुछ कर लिया था प्लान। दे प्लान्ड इट ऑल आउट, सही है। ऑन अ ब्यूटीफुल सनी मॉर्निंग, यानी कि एक बहुत ही सनी मतलब सूरज निकला हुआ था और खूबसूरत और सूरज वाली सुबह। इट वॉज फिशिंग टाइम, ये जो था ये क्या था, मछली पकड़ने का टाइम था। इन द रिवर कुन्हार, कुन्हार एक रिवर है, इधर देखें बेटा, जो कागान वैली के अंदर है। तो ये वक्त था जो इन्होंने डिसाइड किया होगा, प्लान किया होगा। तो ये वक्त था किसका? इट वॉज अ फिशिंग टाइम, ये फिशिंग टाइम था इन द रिवर कुन्हार। एज दे वर लीविंग, जैसे ही वो गुजर जा रहे थे, विद देयर फिशिंग रॉड्स, जब वो अपनी फिशिंग रॉड्स के साथ जा रहे थे, विद का कहते हैं साथ को,
द केयर टेकर ऑफ द रेस्ट हाउस। केयर टेकर होता है ख्याल रखने वाला, जो चौकीदार होता है, या किसी फैमिली को या किसी बंदे को रख दिया वहां पर, भले चौकीदार ना हो, जो ख्याल रखता हो जगह का। तो केयर टेकर जो था रेस्ट हाउस का, जहां पे वो लोग रुके हुए थे, कयाम किया था उन्होंने, वार्नड मतलब उसने उनको इंतबाह किया, उसने उनको खबरदार किया, वार्न देम, उनको उनको खबरदार किया, टू फिश, के वो फिश करें यानी कि मछली पकड़ें, इन अ सेफ एरिया, किसी महफूज जगह पर करें फिशिंग, वेयर फिशिंग वॉज परमिटेड, जहां पर फिश पकड़ने, फिशिंग कहते हैं फिश पकड़ने को, फिशिंग की इजाजत हो, परमिटेड मतलब इजाजत हो। एज दे अप्रोच द माइटी रिवर, जैसे ही वो पहुंचे करीब, अप्रोच मतलब उस तरफ गए, माइटी कहते हैं बहुत ताकतवर दरिया या बहुत ही बड़ा दरिया, माइटी स्ट्रॉन्ग दरिया, सही है, बड़े दरिया के करीब पहुंचे, अप्रोच मतलब उसके करीब पहुंचे, द फैसिनेटिंग साइट यानी बहुत ही खूबसूरत मंजर, साइट कहते हैं मंजर को, फैसिनेटिंग मतलब खुशगवार या खुश करने वाला, एंड द डेफनिंग साउंड, और डेफनिंग कहते हैं जो बहरा कर देने वाली आवाज, ऑफ रिवर कुन्हार, रिवर कुन्हार की जो आवाज थी, मेड देम स्पेल बाउंड, मतलब कहते हैं ना स्पेल बाउंड मतलब कुछ ना कहने के काबिल छोड़ दिया उन्होंने, कुछ कह ही नहीं सके, मतलब स्पेल बाउंड मतलब हक्का बक्का रह गए, उर्दू में बोलते हैं ना, या एक और लफ्ज इसके लिए यूज होता है कि कुछ कहने के लायक ही नहीं छोड़ा उनको, सही है, इस तरह के, उस मंजर ने, उस खूबसूरत मंजर ने, रिवर कुन्हार के, ये दो लफ्ज यहाँ पे यूज हुए ना, फैसिनेटिंग साइट, ये किसी चीज को एक्सप्रेस करने का तरीका है, इसको सीखें यहाँ से, समझ रहे हैं बात, फैसिनेटिंग साइट यानी खूबसूरत दिलकश मंजर, फिर आगे एक और लफ्ज यूज किया, एंड द डेफनिंग साउंड, और बहरा कर देने वाली आवाज, ऑफ रिवर कुन्हार, मेड देम स्पेल बाउंड, उन्हें हक्का बक्का कर दिया या अल्फाज कहने के काबिल नहीं छोड़ा। वक़ार बिगैन टू रिसाइट द कुरानिक आया, वक़ार ने शुरू किया पढ़ना कुरान की आयत को, देयर साइंस टीचर, अब कुरानिक आया के आगे उसकी तफसील लिखी हुई है, देयर साइंस टीचर had referred to when discussing the water cycle, यानी वो स्कूल में जब वाटर साइकिल पढ़ रहे थे तो उनके साइंस टीचर ने ये कुरानिक आयत उन्हें बताई थी, क्या थी वो, क्या थी आयत, एंड ही इट इज, ही अल्लाह के लिए यूज हो रहा है, ही बड़ा कैपिटल में यूज हुआ है ना, तो ही अल्लाह के लिए होता है, एंड ही इट इज हु हैज स्प्रेड आउट द अर्थ, जिसने जमीन को फैलाया, एंड प्लेस देयर इन फर्म हिल्स एंड फ्लोइंग स्ट्रीम्स, कि अल्लाह ने फिर उसके अंदर मजबूत ये कमोबेश मतलब है मजबूत पहाड़ियां, हिल्स लगा दी, डाल दी, रख दी, एंड फ्लोइंग स्ट्रीम्स, और बहते हुए दरिया, नहरें, सही है, वॉकिंग अलोंग द रिवर यानी गुजरते हुए दरिया के साथ साथ, दे enjoyed द सॉफ्ट सैंड, उन्होंने बहुत महजूज हुए उससे, नरम मट्टी से, सही, उसको एंजॉय किया, एज इट ट्रिकल्ड बिटवीन देयर टोज, जैसे ही वो ट्रिकल्ड बिटवीन द टोज मतलब उनके उंगलियों और पंजों के बीच में से जब वो निकल रही होती थी नरम मट्टी, तो उसको उन्होंने बड़ा मजा आया उनको। सून यानी कि बहुत जल्द, दे केम अक्रॉस अ लार्ज रॉक, वो आ, सामने आ गए, केम अक्रॉस अ लार्ज रॉक, बहुत बड़े पत्थर के, प्रोट्रूडिंग, ये देखो प्रोट्रूडिंग, प्रोट्रूडिंग कोई भी चीज जो निकल रही हो ना किसी चीज के अंदर से बाहर की तरफ, उसको कहते हैं प्रोट्रूड हो रही है ये चीज बाहर। अभी इधर कोई तस्वीर में अगर दिखाई गई हो, अब जैसे देखें ये पत्थर प्रोट्रूड हो रहे हैं, ये प्रोट्रूड हो रहे हैं वाटर में से ना, वाटर में से निकले हुए हैं, कोई चट्टान बाहर निकली हुई है तो उसको बोलेंगे कि इट इज प्रोट्रूडिंग, प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ वाटर और आउट ऑफ एनीथिंग, सही है, प्रोट्रूडिंग कहते हैं इसको। कहाँ थे हम लोग, प्रोट्रूडिंग पे थे, प्रोट्रूडिंग इन द वाटर, सही है, सून दे केम अक्रॉस अ लार्ज रॉक प्रोट्रूडिंग इन द वाटर, जो पत्थर पानी के अंदर प्रोट्रूड हो रहा था, अंदर दाखिल हुआ हुआ था, इट सीम्ड जस्ट द राइट प्लेस फॉर फिशिंग, उन्हें लगा, सीम्ड का लफ्ज जब भी आता है ना तो उसका मतलब लगना है, ऐसा लग रहा था, ऐसा दिख रहा था, महसूस हो रहा था, उसको कहते हैं इट सीम्ड, क्या कहते हैं बच्चा, सीम, जस्ट द राइट प्लेस, के बिल्कुल सही जगह महसूस हो रही थी मछली पकड़ने वास्ते। दे बिगैन, उन्होंने शुरू किया, अब देखें पास्ट फॉर्म है ना तो बिगैन लिखा हुआ है,
सही है। करंट फॉर्म होती है, यानी कि करंट मतलब अभी जो चल रहा है, हाल जमाना है, हाल होता, प्रेजेंट टेंस होता तो हम बिगिन लिखते। पास्ट टेंस की निशानदेही किससे हो रही है? बिगैन से। ये पास्ट फॉर्म लिखी हुई है, बिगिन, बिगैन, सही है। टू अनपैक, दे बिगैन टू अनपैक, उन्होंने शुरू किया। अनपैक मतलब कुछ पैक हुआ हुआ था, उसको खोलना शुरू किया। अनपैक मतलब खोलना, अनपैक करना। देयर गेयर, गेयर बेटा यूज, बड़ा कॉमनली यूज वर्ड है आजकल, कि ब्रिंग योर गेयर। कोई भी बंदा है, जैसे अब कंप्यूटर ठीक करने वाला आएगा तो उसके पास एक बैग होगा, उसमें उसके टूल्स होंगे, तो उसको बोल देंगे ब्रिंग योर गेयर्स, ब्रिंग योर गियर इन, यानी अपना सामान अंदर ले आओ और शुरू हो जाओ, कंप्यूटर सही करो। सही है। अगर कोई मोटर सही करने वाला आएगा तो हम उसको भी यही बोलेंगे। गाड़ी सही करने वाले वाला आएगा तो उसका गियर अलग होगा, कंप्यूटर वाले का गियर अलग होगा। फिशिंग पे जा रहे हैं तो उसके लिए आपको रॉड चाहिए, बेट्स चाहिए। बेट कहते हैं उस चीज को जो मछली को आ, अपनी तरफ रागिब करने, खींचने के लिए एक धोखाधही वाली चीज इस्तेमाल होती है। कोई कीड़ा है, उसको बेड बोलते हैं, जो धोखा देने वाली चीज होती है। सही है, आटा या कुछ भी। सही है। तो दे बिगैन टू अनपैक देयर गियर, अब उनका जो गियर था उन्होंने उसको अनपैक किया। गियर कहते हैं सामान को, और खूब मखसूस सामान जो एक खास मतलब टास्क के लिए, काम के लिए इस्तेमाल हो। सही है। एज अ फिशरमैन वॉक बाय, मतलब जैसे ही कोई फिशरमैन, कोई मछेरा साथ में से गुजरा, उनके पास से गुजरा। वॉकड बाय कहते हैं पास से गुजरना। सही है। अब मेरे पास से कोई गुजरेगा तो मैं बोलूंगा ओ ही जस्ट वॉकड बाय, वो अभी अभी गया है यहाँ से, मेरे पास से गुजरा गुजरा है, यानी चलता हुआ गया है। और अगर भाग रहा होगा तो मैं बोलूंगा ही जस्ट, अगर गाड़ी में जा रहा होगा मैं बोलूंगा ही जस्ट ड्रोव बाय। सही है। समझ में आ रही है बात? और इसी तरह अगर वो रन कर रहा होगा, ही जस्ट रैन बाय। समझ रहे हैं बात? तो इस तरह मेरे पास से जो गुजरा है, वॉकड बाय, कुछ भी बोल सकते हैं, बाय लगा देंगे। वॉकड बाय तो बस जो अभी गुजरा है मेरे पास से। सही है, मेरे करीब से गुजरने को वॉकड बाय। वॉकड का मतलब चलते हुए गुजरा है। द थ्री बॉयज ग्रीटेड हिम, सो एज अ फिशर, जैसे ही मछेरा उनके पास से गुजरा, चलते हुए गुजरा, तो तीनों लड़कों ने उसे ग्रीट किया। मतलब उसे ग्रीट करना कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, और गुड मॉर्निंग, अंग्रेज हो तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, और गुड डे नाइट, और ये सब ग्रीटिंग्स हैं। हाउ यू डूइंग, ओ आई विश यू वेरी हैप्पी डे टुडे, और इस तरह की चीज़ें ये ग्रीटिंग्स में आती है। सही है। ग्रीट कर दिया। कोई अगर अरब अरब है तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैफ हालुका या हबीब, यानी इस तरह। तो ये ग्रीटिंग्स हैं सारी। सो द थ्री बॉयज ग्रीटेड हिम, अस्सलाम वालेकुम, तो इसने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने कहा वालेकुम अस्सलाम, ही रिप्लाइड, ही। अब देखें, ये सब इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा होता है ना बच्चा, ये होता है उसका एग्जैक्ट जुमला। अस्सलाम वालेकुम इसका पहले ही लिखा है, द थ्री बॉयज ग्रीटेड हिम, इस अस्सलाम का पहले से लिखा हुआ है कि तीनों लड़कों ने कहा अस्सलाम वालेकुम। आप देखें आगे फुल, आगे एक और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से शुरू हुआ, वालेकुम अस्सलाम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हुआ, तो उसका आगे लिखा है कि वो किसने कहा है, ही रिप्लाइड। किसने रिप्लाइड? फिशरमैन ने रिप्लाई किया वालेकुम अस्सलाम। सही है। अब क्या हुआ? सीइंग देयर फिशिंग रॉड्स, यानी ये देखने पर कि देयर मतलब उन लड़कों के पास, फिशिंग रॉड मतलब मछली पकड़ने का सामान उसने देखा, एंड अ बेट बॉक्स, ये सब कुछ सीइंग देखने के बाद, ही सैड उसने कहा, आई वुडंट एडवाइस यू टू फिश हियर, मैं तुम्हें बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा कि तुम यहाँ पर मछली पकड़ो। ये उसने अपना बता दिया ओपिनियन। द करंट इन दिस एरिया इज वेरी स्ट्रांग, इधर लहरें बहुत तेज हैं। करंट समंदर या दरिया या नहर में बात, जब वो करंट की तो उसका फ्लो या उसके अंदर लहरें या उसका जो बहाव है उसको करंट कहते हैं। द करंट इन दिस एरिया, इस जगह पर बहुत तेज है। ही वॉकड ऑफ फर्दर, वो खुद तो चला गया। वॉकड ऑफ मतलब दूर चला गया। ऑफ जाना, दूर जाना, वॉकड ऑफ, ही रैन ऑफ, वहां से चला गया। हाँ हाँ, नीचे आ गए। नहीं, यहाँ तो ये डूब गए। वो ऊपर शुरू में बता रहा है। नहीं, ये तो कोई और बंदा है, अभी आएगा ना, हमने पढ़ा था, अभी आएगा ये बचाने के लिए। तो फिशरमैन बता रहा है इन दोनों को, या तो पता नहीं, ये शायद वो है, रेस्ट हाउस का जो बंदा है ना, ये वो है। वो इनको वार्न कर रहा था ना शुरू में, ये वो है। अच्छा, हम कहाँ पहुंचे थे? ही वॉकड ऑफ फर्दर डाउन, फर्दर डाउन मतलब वो थोड़ा और आगे चला गया। अलोंग द रिवर बैंक मतलब रिवर के किनारे के साथ साथ, सेइंग कहते हुए, इट इज नॉट एट ऑल अ सेफ प्लेस फॉर फिशिंग, उसने ये कहते हुए बोल चला गया कि बिल्कुल भी महफूज जगह नहीं है फिश पकड़ने के लिए। अच्छा, अब ये अगला कोई बोल रहा है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है ना, देखो इधर और से, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है बेटा, तो इसका मतलब लेट अस फाइंड अनदर प्लेस, सजेस्टेड वकार। अब ये
उसने कहा कि आओ कोई और जगह देखें, अनदर कोई और जगह, प्लेस मतलब जगह देखते हैं, फाइंड करते हैं मतलब ढूंढते हैं। सही है, लेट अस मतलब आओ हम। सजेस्टेड वकार, वकार ने मशवरा दिया। आसिफ एंड जुनेद फ्रॉन्ड, उन्होंने थोड़ा ना, आसिफ और जुनेद ने थोड़ा इजहारे वो किया, मतलब फ्रस्ट्रेशन दिखाई अपनी थोड़ी सी ना, मतलब नाखुशी का इजहार किया, फ्रॉन्ड। सही है। लेट्स स्टे हियर, यहीं रुकते हैं यार। उसने कहा लेट्स स्टे हियर, आओ यहीं रुकते हैं। द वाटर इज सो काम, पानी इतना वो है, काम मतलब खामोश, और इतना सुकून दे है, काम कहते हैं सुकून वाला, सुकून दे है। एंड पीसफुल, और मतलब पुरअमन है पानी। सेड आसिफ, आसिफ ने कहा, इग्नोरिंग द वार्निंग। अब देखें, वसीम मान गया, वकार सॉरी मान गया था, आसिफ और जुनेद जो है वो थोड़े से मतलब वो हो गए, यानी कि वो बोलने इग्नोर थे, यानी कि पापा हैं आप तो हम लोग आपके ऊपर वो, हाँ, तो नहीं आप उसके टीचर दोस्त है थे, तो हाँ, दोस्त थे। तो फिर हम लोग आपके ऊपर लग जाएंगे, हाँ बोलेंगे, जिद करेंगे कि हाँ नहीं नहीं यार ये बहुत अच्छी जगह है, हाँ यहाँ पर ये हो हाँ, जाएगा। कर लेते हैं। आप मना भी करेंगे फिर भी नहीं नहीं आप यूं। हाँ, सैड आसिफ, इग्नोरिंग द वार्निंग। तो अब आसिफ ने कहा, इग्नोरिंग मतलब नजरअंदाज करना, छोड़ देना, उसने वार्निंग को इग्नोर किया। लुक, अब ये देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा है, लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो स्ट्रेस देके, जोर देके बोल रहा है, लुक देयर आर सो मैनी फिशेस, इतनी सारी मछलियां हैं, स्विमिंग हेयर मतलब इधर तैर रही हैं, हेयर मतलब इधर, आगे अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। सही है, यहाँ पे ये वाला, इसका मतलब कि वो जोर दे रहा है। शाउटेड जुनैद, अब देखें वकार मान गया था, लेकिन अब जुनैद ने एक और मुद्दा पेश कर दिया, वो कह रहा है देखो इधर इतनी सारी मछलियां तैर रही हैं। शाउटेड, उसने चिल्लाया जुनैद ने। इन एक्साइटमेंट, शाउटेड इन एक्साइटमेंट मतलब वो खुशी से चिल्लाया। पॉइंटिंग एट द वाटर मतलब उसने वाटर की तरफ, पॉइंटिंग मतलब इशारा किया, एट द वाटर। एज ही सेट ऑन द रॉक, मतलब जैसे वो बैठ रहा था, बैठते हुए मतलब एज ही सेट ऑन द रॉक, यानी पत्थर पर बैठते हुए वो ये कह रहा था। यानी क्या कह रहा था, शाउटिंग इन एक्साइटमेंट था, जुनेद शाउटेड, जुनेद इन एक्साइटमेंट। सही है। आसिफ जॉइंड हिम, अब वकार अलग हो गया है और आसिफ और जुनेद अलग हो गए, तो आसिफ ने भी उसे ज्वाइन कर लिया, वो भी उसी के साथ था। वकार रिलक्टेंटली सेड बिसाइड हिम, अब वकार, रिलक्टेंटली का लफ्ज बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है ना चाहते हुए। यानी अब मान गए, आपने अपने बाबा से वो किया, जिद की, आपने किसी बड़े से जिद की, वो नहीं बोल रहे थे नहीं बेटा नहीं करो, फिर ना चाहते हुए भी वो मान जाए ना कोई बात, तो उसको क्या बोलते हैं कि देर ही रिलक्टेंटली एक्सेप्टेड इट, और ही रिलक्टेंटली एग्रीड। सही है। अब यहां क्या लिखा है, वकार रिलक्टेंटली सैट बिसाइड हिम, यानी उन उसके बराबर में वकार मजबूरन या ना चाहते हुए बैठ गया। बिस्मिल्लाह, ये जुमला कहा, देखो इन्वर्टेड कॉमा लिखा है, दिख रहा है, दिख रहा है इन्वर्टेड कॉमा में, बोले जोर से। जी Recited the three friends as they tossed their fishing lines in the water. अब ये इन्होंने रिसाइट किया, यानी कि पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ा। रिसाइटेड द थ्री फ्रेंड्स, तीनों दोस्तों ने, एज दे, अब देखें एज जब भी लग जाता है ना, तो उसके साथ वो बता रहे होते हैं कि क्या करते हुए बोल रहे हैं। अब जैसे एज ही सेट डाउन, यानी जैसे वो बैठ रहा था तो उस वक्त बिस्मिल्लाह बोल रहा था, या जब बैठते हुए वो ये देख रहा था तो ही वॉज टॉकिंग एज ही सेट डाउन। यानी कि अगर मैं किसी के बारे में बोलूं कि वो बैठ रहा था और बातें कर बैठते रहा हुए था। बात कर रहा था, और ही वॉज सेइंग एज ही सेट डाउन, वो कह रहा था जब वो बैठ रहा था। सही है। तो एज दे टॉस देयर फिशिंग लाइंस, फिशिंग लाइंस होते हैं मछली पकड़ने की रस्सियां होती है ना, डंडे के आगे उसको यूं झूला दे के पानी के अंदर फेंकते हैं ना, तो वो जब वो करते हुए उन्होंने बिस्मिल्लाह कहा। सो विद इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही देर के अंदर। सही है। आई विद इन अ फ्यू मिनट्स, जुनेद फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग टग ऑन हिज लाइन, जुनेद जो है उसने महसूस किया, स्ट्रॉन्ग टग मतलब एक खिंचाव और तनाव महसूस किया अपनी लाइन, लाइन कह रहे हैं उसकी रस्सी को, जो पूरा डंडा पकड़े होते हैं आगे रस्सी होती है ना, उस पूरे के अंदर उसको टग, एक झटका और एक तनाव महसूस हुआ। सही है। आई थिंक आई गॉट अ बिग वन, बोल रहा है मेरा ख्याल है मैंने पकड़ ली है, कॉट मतलब कैच का सेकंड फॉर्म है कॉट, ऑफ कॉट, हैव के साथ कॉट लगते हैं, यानी
हैव जब भी लगता है उसके साथ सही, सही है, कॉट लगता है। तो आई कॉट अ बिग वन, मैंने पकड़ ली है एक बड़ी वाली। गिव मी अ हैंड, मुझे हैंड मतलब मुझे मदद करो। गिव मी अ हैंड का मतलब ये नहीं होता मुझे हाथ दो। सिर्फ ये नहीं होता। जैसे मैं अब काम कर रहा हूँ और इसका कभी कभार ये भी मतलब होता है कि मुझे हाथ दो। जैसे मैं अगर बहुत हैवी वेट उठा रहा हूँ तो मैं एक तरफ से उठा के बोलूंगा आपको गिव मी अ हैंड, तो आप दूसरी तरफ से अपना हाथ से हेल्प करोगे मेरी। सही है। या अगर मैं बहुत सारे पेपर्स के ऊपर कुछ लिख रहा हूँ या मैं कुछ काम कर रहा हूँ कंप्यूटर पे और मैं बोल रहा हूँ आपको कि यार आप रीड कर दो, तो उधर आप हाथ तो यूज नहीं कर रहे ना, मुंह से रीड करके मुझे बताओगे, फिर भी मैं बोलूंगा गिव मी अ हैंड प्लीज, हेल्प मी, जस्ट कम हाँ, एंड गिव कभी मी अ कभार हैंड। ऐसा भी होगा यानी मुझे कि अपना थोड़ा मदद कर दो, हाथ दे दो, दो। थोड़ा सपोर्ट दे दो। सही है। सो गिव मी अ हैंड समझ में आ गया आपके? ही शाउटेड एक्साइटेडली, उसने चिल्लाया एक्साइटेडली मतलब पुरजोश अंदाज में, खुशी के साथ। टुगेदर दे होल्ड द बिग ट्राउट आउट ऑफ द रिवर। टुगेदर मतलब दोनों ने मुश्तरका तौर पर एक साथ मिलकर, दे हॉल्ड, उन्होंने हाँ ना, उसने उसको कहा ना कि गिव मी अ हैंड। तो टुगेदर दे हॉल्ड द बिग ट्राउट, उन दोनों ने मिलकर एक बड़ी मछली पकड़ ली, उसका नाम था, फिश का नाम था ट्राउट, ट्राउट एक मछली का नाम है, आउट ऑफ द रिवर, रिवर से बाहर खींच ली। एज जुनेद स्टेप बैक टू गेट द बकेट टू पुट द फिश इन, जैसे ही जुनेद स्टेप बैक मतलब वो पीछे कदम उसने उठाए ताकि वो बकेट ले, टू गेट, गेट मतलब लेना, द बकेट मतलब कोई कंटेनर या बाल्टी, टू पुट द फिश इन ताकि वो उसमें मछली रख सके, हिज फुट, उसका जो कदम था, उसका जो फुट था, पैर जो था उसका स्लिप हो गया, फिसल गया, ऑन द वेट रॉक, गीले पत्थर के ऊपर। बिफोर वक़ार और आसिफ को डू एनीथिंग, यानी इससे पहले कि वक़ार और आसिफ कुछ करते, जुनेद फेल इनटू द रिवर, जुनेद जो है वो गिर गया पानी के दरिया के अंदर। ही ट्राइड टू ग्रैब ऑन द रॉक, उसने कोशिश की कि वो पत्थर को पकड़े, लेकिन जो भी पत्थर होता है ना समंदर या दरिया या नहर में पानी की जगह पर, उसके ऊपर फंगल ग्रोथ हो जाती है और वो नजर नहीं आती, लेकिन उसके बाद एक बड़ी ही स्लिपरी फिल्म आ जाती है, कभी कभार ट्रांसपेरेंट होती है, कभी ग्रीन कलर की होती है, लेकिन वो इतनी होती है कि आप उसको पकड़ेंगे वो ग्रैब में नहीं आएगी, वो बहुत स्लिपरी होती है, चिकनी हो जाती है। पकड़ पकड़ चिकनी हो जाती है मतलब आप उसको पकड़ेंगे फिसल जाएगी। सही है। ही ट्राई टू ग्रैब ऑन द रॉक बट इट वॉज टू स्लिपरी, वो बहुत फिसलने वाली थी। द स्ट्रॉन्ग करंट, याद है उसने कहा था कि यहाँ करंट स्ट्रॉन्ग है, यानी कि यहाँ लहरें और बहाव तेज है। तो स्ट्रॉन्ग करंट स्वेप्ट हिम अवे, उसको बहा के आगे ले गया, दूर ले गया, फ्रॉम द रॉक, रॉक से आगे ले गया। हेल्प हेल्प, मदद करो, स्क्रीम्ड। अब ये देखो ये लफ्ज जो है ना, यहाँ पे येल्ड नहीं बोला, यहाँ पे शाउटेड नहीं बोला, यहाँ पे स्क्रीम बोला, हालांकि हर चीज में चिल्ला ही रहा है वो। कोई बोले, कोई बोले कि क्या कर रहे हो, ये भी शाउट, ये है शाउटिंग। सही है। कोई कह रहा है कि बचाओ बचाओ, तो ये स्क्रीमिंग है कि वो चिल्ला रहा है मदद के लिए, समझ रहे हैं बात? हेल्प हेल्प स्क्रीम्ड जुनेद इन फेयर, तो खौफ के अंदर जुनेद ने ये इस तरह स्क्रीम किया, चिल्लाया। while trying to keep his head above the freezing water, अच्छा वो ये चिल्ला भी रहा था, वाइल अगेन उसी तरह की बात है जैसे एज नहीं हो रही थी। वाइल मतलब वाइल लगाते हैं वो भी उसी की चीज के साथ जो हो रही हो इस दौरान। सो वाइल ट्राइंग, इसी दौरान वो कोशिश भी कर रहा था, टू कीप हिज हेड, कि वो अपना सर रखे, अबव द फ्रीजिंग वाटर, यानी सर को पानी से ऊपर रखे। जारी बात है अगर पानी के अंदर चलेगा सांस नहीं ले सकेगा, फिर तो बेहोश हो जाएगा, फिर मर जाएगा नीचे जाके। सही है। तो वो सर ऊपर रखने की कोशिश कर रहा था। एंड फाइटिंग इन वेन, ये देखो ये इन वेन का जो लफ्ज है ना, गौर से देख लो, INNVAIN, वेन। इन वेन कहते हैं कि बेस, नकारा होना। फाइटिंग इन वेन मतलब वो फाइट कर रहा है लेकिन नकारा फाइट कर रहा है, बेसोध है वो, कोई फायदामंद नहीं है, गैर मुफीद। इन वेन मतलब ये इसका कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जा रही है, बोलते हैं ना, ऑल योर एफर्ट्स आर गोइंग इन वेन। ये वो वाला इन वेन है। सही है। ये वो नालियों वाला नहीं है, आर्टरीज और वो वाली वेन, वो नहीं है साइंस वाला, बायोलॉजी वाला। सही है। इन एंड फाइटिंग इन वेन मतलब जब भी कोई काम आदमी कर रहा हो और यू आर स्क्रीमिंग इन वेन और यू आर जस्ट शाउटिंग इन वेन, तुम चिल्ला रहे हो, बेकार चिल्ला रहे हो,
इन वेन बेकार के लिए यूज होता है, इस तरह के सिचुएशन में यूज होता है। समझ में आ रहा है? इन वेन समझ में आया? बोलो इन वेन। इनवेट ये बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, उसको प्लीज याद रखो। फाइटिंग इन वेन अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग करंट, यानी वो बेकार लड़ रहा था। अगेंस्ट मतलब खिलाफ किसके? स्ट्रॉन्ग करंट के, मतलब बहुत तेज बहाव के या बहुत तेज लहरों के वो खिलाफ बेकार सी फाइट कर रहा था। उसकी कोई मतलब उसकी कोई हैसियत नहीं थी, इतनी मजबूत वो क्या बोलते हैं वो थी, करंट था या लहरें थी। सही है। एज आसिफ एंड वक़ार वॉच्ड इन हॉरर। अब गिरा कौन है? जुनेद गिरा है। तो एज आसिफ यानी आसिफ और वक़ार जैसे ही उन्होंने देखा, वॉच्ड मतलब देखा, इन हॉरर। अब देखो वॉच के साथ मजीद तफसील लगाई हुई है, देख रहे हो? वॉच्ड इन हॉरर। सिर्फ ये नहीं कि जब उन्होंने, जब उन दो लड़कों ने उसको डूबते हुए देखा, ये नहीं बोला। बोला जब उसको देखा खौफ के आलम में, इन हॉरर। आगे ये लफ्ज भी लगाया। ये होता है अच्छा तरीका किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने का। अब एक सादा सा बच्चा आएगा बोलेगा कि जब वो उसको देख रहे थे तो वो लोग कोशिश कर रहे थे, ऐसे बोलेगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि आसिफ एंड वकार वॉच्ड इन हॉरर, यानी वो खौफजदा होकर देख रहे थे उसको। जुनेद हैड डिसअपेयर्ड। जुनेद जो डूब रहा था उसका सर डिसअपेयर्ड का मतलब क्या होता है बच्चा? जुनेद हैड डिसअपियर्ड डिसअपेयर्ड मतलब मतलब गायब हो गया। गायब हो फॉर अ सेकेंड यानी एक सेकंड के लिए वो गायब हुआ। एंड अगेन और दोबारा पॉप्ड अप, दोबारा पानी में से बरामद हुआ। यानी कुछ देर के लिए गायब हो गया, यानी पानी में डूब गया वो, फिर अचानक से पॉप्ड अप मतलब यूं उछल के बाहर आया। ऑन द सरफेस मतलब सतह पर। सरफेस कहते हैं जो पानी की टॉप लेयर होती है ना, पानी का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको सरफेस कहते हैं। एंड अगेन पॉप डाउन द सर्फेस अ लिटिल डाउन द रिवर। मतलब वो यहां डूबा था तो थोड़ी दूर उसका दोबारा से सर दोबारा निकला, यानी कि पानी बहा के उसको ले जा रहा था। सही है। ही वॉज गास्पिंग फॉर एयर। वो जल्दी जल्दी सांस ले रहा था। जब आदमी पानी में जाता है तो कैसे मुंह खोल के सांसें ले रहा होता है, आंखें खुली हुई होती हैं और हक्का बक्का हुआ हुआ होता है आदमी ना। तो इसको कहते हैं गास्पिंग फॉर एयर। वो सांस के लिए हवा लेने के, सांस लेने के लिए तेज तेज वो सांसें ले रहा था, गास्प कर रहा था। सही है। हेल्प, मदद, मदद। येल्ड जुनेद मतलब अब दोबारा से निकला है तो वो दोबारा चिल्ला रहा है मदद करो। एज द स्ट्रॉन्ग करंट पुल्ड हिम बैक इनटू द रिवर। अब वो जो लहरें थी, स्ट्रॉन्ग जो लहरें थी, वो जैसे ही उसको एज देखो, एज दोबारा आ गया। एज का मतलब एज के आगे फिर वही तफसील लिखी हुई है कि जैसे वो करंट या बहाव जो है उसे खींच रहा था पानी के अंदर। सही है। वक़ार एक्टेड स्विफ्टली। अब वक़ार जो है उसने एक्शन किया। स्विफ्टली कहते हैं बेटा तेजी से। कोई भी काम तेजी से उसको क्या बोलेंगे? स्विफ्टली। स्विफ्टली स्विफ्ट कहते हैं तेज बंदे को या फुर्तीले। उसने फुर्ती के साथ एक्शन किया। ही ओपनड हिज बैग। उसने खोला अपना बैग बस्ता। एंड ग्रैब्ड अ रोप। और पकड़ी उसने एक रस्सी। ट्राइंग हार्ड। और वो पूरी कोशिश कर रहा था। ट्राइंग हार्ड मतलब एक पूरी कोशिश कर रहा था। टू रिकॉल याद करने की। रिकॉल कहते हैं याद करने को, कि दोबारा से सोच रहा था कि क्या बताया था, इसको बोलते हैं रिकॉल करना। वॉट हिज स्काउट इंस्ट्रक्टर हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द वाटर सेफ्टी क्लास लास्ट टर्म। यानी कि लास्ट टर्म में उसकी एक वाटर सेफ्टी की क्लास हुई थी। किसकी क्लास हुई थी? वाटर सेफ्टी वाटर सेफ्टी का मतलब क्या हुआ? जिसमें पानी के अंदर रहते हुए या पानी के करीब जो एहतियात सेफ्टी करनी होती है, जो एहतियात हिफाजत के लिए करनी होती है, उसकी कोई क्लास हुई थी। तो अब ये रिकॉल कर रहा था, याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या बताया था। व्हाट हिज स्काउट इंस्ट्रक्टर है डेमोन्स्ट्रेटेड। डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, देखो डेमो टोल्ड अलग चीज है कि व्हाट हिज स्काउट टीचर हैज टोल्ड देम। टोल्ड देम का क्या मतलब हुआ? कि बताया। डिमॉन्स्ट्रेटेड जहां लफ्ज आ जाए ना, इसका मतलब कि करके दिखाना। कैन यू प्लीज डिमॉन्स्ट्रेट इट व्हाट यू आर सेइंग। कि आप जो बता रहे हैं इसको आप करके दिखा सकते हैं। आप समझे ना बात? यानी कि अगर किसी को कोई चीज समझानी है, मैं बोलूं कि आप यूं उछलें, फिर आप नीचे आए, फिर आप जो अपने हाथों को रखें, फिर पाँव को पीछे करें और स्ट्रेट हो जाएं तो प्लैंक्स आप लगा लेंगे। और मैं कुछ भी आपको एक्सरसाइज समझा रहा हूं तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा तो वो बोलेगा कैन यू प्लीज डिमॉन्स्ट्रेट इट। क्या आप इसको करके दिखा सकते हैं? समझ रहे बात? कैन यू प्लीज डिमॉन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेट डिमॉन्स्ट्रेट इट।
सही है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्टर हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द वाटर सेफ्टी क्लास। डिमॉन्स्ट्रेटेड मतलब उसने करके दिखाया था, नमूने के तौर पर। सही है। लास्ट टर्म, ही टाइड वन एंड, उसने बांधा एक सिरा। एंड कहते हैं उसका जो रस्सी का एक सिरा होता है। ऑफ द लॉन्ग रोप, लंबी रस्सी का एक सिरा उसने बांधा। अराउंड हिज वेस्ट, अपनी कमर पे बांधा। इन अ स्लिप नॉट, ये स्लिप नॉट बेटा एक नॉट कहते हैं गिराह को। गाठी बांधते हैं ना हम, लेस बांधते हैं ना अपने जूते के लेस, तो उसके अंदर आप लेस बांधते हैं तो उसके अंदर आप गिरा लगाते हैं ना, तो गिरा को बोलते हैं क्या, नॉट। के एन ओ टी। सिर्फ एन ओ टी नहीं, क्या बोलते हैं, के एन ओ टी। क्या बोलते हैं बेटा, के एन ओ टी नॉट। ये लिखा हुआ है ना, के एन ओ टी नॉट। अब ये है एक स्पेशल टाइप ऑफ नॉट, उसको कहते हैं स्लिप नॉट। क्या कहते हैं इसको, स्लिप नॉट। स्लिप नॉट। तो उसने एक सिरे को बांधा अपनी वेस्ट के ऊपर इन अ स्लिप नॉट, एंड गेव द अदर एंड टू आसिफ। दूसरा एंड उसने दिया किसको, आसिफ को। ये किसने किया ये सारा काम, ये कौन कर रहा था बेटा, वक्कार। वकार। वक्कार एक्ट कर रहा था स्विफ्टली। वक्कार ही वो बंदा है जो कह रहा था कि यार कहीं और चलते हैं। जुनेद आसिफ उसके खिलाफ हो गए थे। तो वकार ने एक्शन किया स्विफ्टली ही ओपन, उसने बैग खोला, रस्सी ग्रैब की मतलब पकड़ी, और फिर पूरी कोशिश से उसने कर रहा था कि वो याद करे कि उसके स्काउट इंस्ट्रक्टर ने क्या डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था वाटर सेफ्टी की क्लास में। फिर उसने एक हिस्सा बांधा अपने एंड को, लॉन्ग रोप को, अराउंड हिज वेस्ट, मतलब अपनी कमर, वेस्ट कहते हैं कमर को, कमर के गिर्द माना, इन अ स्लिप नॉट, स्लिप नॉट के जरिए। एंड गेव द अदर एंड टू आसिफ, दूसरा जो एंड है वो आसिफ को दे दिया। और अब ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, इसका मतलब कोई कह रहा है कुछ। पढ़ो क्या कह रहा है, टाई इट टाइटली, बांधो इसको मजबूत, अराउंड दैट ट्री ट्रंक, यानी उस दरख्त के, ट्रंक कहते हैं तने के, अराउंड, यानी दरख्त था कोई, वो दिखा रहा था उसको कि उस दरख्त के तने के गिर्द उसको मजबूत बांधो। ही इंस्ट्रक्टेड, उसने उसको इंस्ट्रक्ट किया, मतलब उसने उसको कहा कि ये करो, ऑर्डर दिया उसको। इंस्ट्रक्ट करना कहते हैं हुक्म दिया उसको, या इंस्ट्रक्ट, रिक्वेस्टेड कहते हैं उसने उससे दरख्वास्त की। इंस्ट्रक्टेड का लफ्ज वहां यूज होता है जहां कोई बंदा अपर हैंड रख रहा यानी हो, ये बड़ा जो हो वो क्या। कोई लीडर हो या कोई कमांड हो किसी के पास, या कोई, समझ रहे हो बात, कोई लीडर हो ना वो बंदा, तो ये अचानक ये खुद इसको समझ में आ गया, तो इसका मतलब ये लीड कर रहा है, तो लीडर इंस्ट्रक्शन देता है। स्टूडेंट टीचर से रिक्वेस्ट करता है या इजाजत लेता है, परमिशन लेता है, आस ही आस परमिशन, वो पूछता है। वहां पे इंस्ट्रक्शन का लफ्ज यूज नहीं कर सकते। इंस्ट्रक्शन का लफ्ज बेटा कहाँ यूज होगा, जहां पर हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ चीज जा रही होगी। अब ये तो दोनों दोस्त थे, सेम लेवल थे, लेकिन चूंकि एक को तो लीड बनना पड़ता है ना, कभी भी कोई काम करना हो, कोई टास्क करना हो, तो इट इज इसेंशियल, ये जरूरी है कि कोई एक बंदा लीड करे। अगर सारे लीडर बन जाएंगे तो आपस में लड़ाई होगी। तो ऑटोमेटिकली उसने लीडिंग रोल इख्तियार किया, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है ही इंस्ट्रक्टेड। ही इंस्ट्रक्टेड हिम, उसने इसको, ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत ही सेंसिटिव भी है। सेंसिटिव का मतलब आप हर जगह ये लफ्ज यूज नहीं कर सकते, लोग माइंड कर जाएंगे। समझ रहे हैं बात। अब मैं अपने से ऊपर वालों को या अपने से बराबर वालों को ये नहीं कह सकता आई इंस्ट्रक्ट यू। मैं अपने से नीचे वालों को कह सकता हूं जो मेरे कमांड में आते हैं, उनको मैं कहूंगा कि आई इंस्ट्रक्ट यू टू डू दिस। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, या मैं तुम्हें रुख बता रहा हूं कि तुम क्या करो, ये जाके ये काम करो, मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। सही है। डायरेक्शन दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ये लफ्ज यूज होते हैं हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ क्या होता है यूज, ही रिक्वेस्टेड हिम। अगर ये उससे बड़ा होता तो फिर वो बोलेगा ही रिक्वेस्टेड हिम टू प्लीज टाई इट डाउन। लेकिन यहाँ चूंकि सिचुएशन हार्श थी और मतलब अर्जेंट काम करना था, तो उसने स्ट्रेट अवे इसको लिहाज, किसी चीज का लिहाज किए बगैर, नहीं गुस्से की बात नहीं है, कोई भी काम यहाँ गुस्से में नहीं होते इस तरह के काम। इस तरह किसी इमरजेंसी सिचुएशन में एक्ट करने के लिए यू हैव टू बी कूल माइंडेड, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने हवास संभालने होते हैं। तो अपने हवास संभाल के फिर वो आगे इंस्ट्रक्शन, आप कोई भी एक्शन कर सकते हैं। अगर आप खुद परेशान होंगे या खुद परेशान हो जाएंगे, यू कांट डू एनीथिंग देन, आप कुछ नहीं कर सकते फिर। ही इंस्ट्रक्टेड हिम, उसने उसको कहा, पॉइंटिंग टूवर्ड्स, पॉइंटिंग मतलब इशारा करना,
टूवर्ड्स मतलब की तरफ, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ ट्री, यानी ये ट्री एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए उसने उसे हुक्म दिया कि जाओ जल्दी से इसको बांध दो। आसिफ कंप्लाइड। अब ये देखो इंस्ट्रक्शन के साथ जो दूसरा लफ्ज आता है ना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, कंप्लाइड। आई विल कंप्लाई टू योर इंस्ट्रक्शन, मैं आपके हुक्म की ताबेदारी करूंगा, मानूंगा, यानी वो कंप्लाई करना, पूरा कर देना। आसिफ कंप्लाइड क्विकली, आसिफ ने उसको अमल में ले आया, उसके इंस्ट्रक्शन को अमल में ले आया। जल्दी यानी कंप्लाइड मतलब वो जल्दी से, मान गया और कर दिया उसने वो। जल्दी से। आसिफ कंप्लाइड क्विकली को सादे लफ्जों में बोले तो आसिफ ने जल्दी से वो काम कर दिया। सही है। लकीली, खुशकिस्मती से, लकीली जब भी आता है इसका मतलब खुशकिस्मती से, जुनेद हैड मैनेज्ड टू कैच होल्ड ऑफ अ थिन, ये देखो यहां क्या लिखा है, कैच होल्ड, टू कैच होल्ड। जुनेद ने, हैड मैनेज मतलब उसने कुछ ना कुछ करके ये कर लिया था, टू कैच होल्ड मतलब उसने पकड़ ली थी, ऑफ अ थिन ट्री ब्रांच, एक पतला सा दरख्त की एक शाख थी, उसने उसको पकड़ लिया था, हैंगिंग ओवर द रिवर, जो दरिया के ऊपर लटक रही थी, उसने उसको पकड़ लिया था। वकार स्वयं विद लॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक्स टूवर्ड्स हिम, वकार जो है वो तैर रहा था, विद लॉन्ग लंबे, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक्स टूवर्ड्स हिम, यानी वकार ने तैराकी की, लंबे और बड़े मजबूत उसने स्ट्रोक्स मारे। जो तैराकी करते हुए, स्विमिंग करते हुए जब आप हाथ मारते हैं तो इसको स्ट्रोक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोक। स्ट्रोक। स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक होगा तो आप आगे तेजी से जाएंगे। स्ट्रोक सही है। टूवर्ड्स हिम सही है। टूवर्ड्स हिम। प्रेइंग ऑल द वाइल दैट द ब्रांच वुड होल्ड हिज फ्रेंड्स वेट। प्रेइंग ऑल द वाइल यानी वो दुआ कर रहा था, ऑल द वाइल मतलब इस दौरान वो दुआ कर रहा था, डेट द ब्रांच की जो शाख है वो वुड होल्ड, वो उसको कायम रखे उसके दोस्त के वजन को। द वॉटर वॉज फ्रीजिंग कोल्ड, जो पानी था वो बहुत ही सख्त ठंडा था, पानी जो था। वकार कुड फील क्रैम्प्स इन हिज लेग मसल्स, तो वकार जो था वो महसूस कर रहा था, कुड फील मतलब महसूस कर रहा था, फील कर रहा था। क्रैम्प्स यानी गड्ढे बन गए थे, सर्दी और ठंडा पानी अकड़ गए थे उसके मसल्स ना, उसको बोलते हैं क्रैम्प पड़ना। यानी जब आपके मसल्स एक गड्ढा से बन जाते हैं ना, इकट्ठा हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, और आपके चाहत के मुताबिक काम नहीं कर रहे होते, तो आप क्या लफ्ज यूज करते हैं? ओ मेरे क्रैम्प पड़ गए, क्या बोलते हैं आप? मेरे क्रैम्प पड़ क्रैम्प्स गए। पड़ गए। क्रैम्प्स इन हिज लेग मसल्स, उसके जो लेग्स मतलब उसके जो पाँव के पट्टे थे, मसल्स जो सारा काम करते हैं, पाँव को ऊपर नीचे करते हैं, उन मसल्स के अंदर क्रैम्प्स पड़ गए थे। वकार रीच्ड जुनेद जस्ट इन टाइम, यानी वकार एन मौके पर, जस्ट इन टाइम कहते हैं बिल्कुल उसी वक्त जब चाहिए हो ना, उसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, जस्ट इन टाइम। जस्ट बोलो जस्ट इन टाइम जो है ना, जस्ट इन टाइम जस्ट इन मतलब। टाइम के लिए एक और बात बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है, इसको मैं फुल जूम करके आपको एक एडवांस चीज बताता हूँ। आजकल ये सिस्टम बड़ा चल रहा है, जस्ट इन टाइम सिस्टम कहते हैं उसको। जस्ट इन टाइम ये होता है कि जो चीज जिस वक्त दरकार है उसी वक्त आए। आप समझ रहे हैं बात? जैसे अगर आप गाड़ी बना रहे हैं, मिसाल के तौर आप कार बना रहे हैं, कार बनाने वाली कंपनी है, तो वो जाहिर बात है, टायर एक और वेंडर होता है उसका, एक कंपनी होती है वो सिर्फ टायर बनाती है, एक कंपनी होती है जो सिर्फ गियर्स बनाती है, एक कंपनी होती है जो हैंडल नहीं पकड़ते जिससे कार का स्टीयरिंग होता है, एक कंपनी सिर्फ स्टीयरिंग बनाती है, एक कंपनी सिर्फ विंड स्क्रीन जो शीशे होती है सारे, एक कंपनी वो बनाती है। तो ये छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जो एक एक पार्ट की स्पेशलिस्ट होती हैं। सही है। तो अब कार बनाने वाली कंपनी क्या करती है? असेंबल करती है। जैसे टोयोटा कंपनी है ना, और जैसे सुजुकी कंपनी है, हीनो की कंपनी है, ट्रक बनाती है, या JF-17 थंडर पाकिस्तान में बनता है, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है, तो इसके पार्ट्स चाइना से आते हैं। कुछ इंजन, कुछ इस तरह की चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं बनती, कुछ पार्ट्स बनते भी हैं लेकिन ज़्यादातर पार्ट्स ओवरसीज से आते हैं। तो जो पार्ट्स भी ओवरसीज से यानी बाहर मुल्कों से आते हैं, वो एक स्टोरेज में रखे जाते हैं, फिर जब तैयार तैयार हो जाता है स्ट्रक्चर, तो उसके ऊपर फिर वो चीज़ें कनेक्ट की जाती हैं। जस्ट इन टाइम सिस्टम एक बहुत ही एडवांस सिस्टम है,
क्या होता है कि जिस वक्त चीज रिक्वायर्ड है उसी वक्त आपकी कंपनी में दाखिल हो। आप समझ रहे हैं बात? जैसे हम लोग दूध घर में मंगा के थोड़ा ज्यादा रख लेते हैं ना, और फिर जब हमें चाहिए होता है आहिस्ता आहिस्ता उसको यूज करते जाते हैं। यानी कि यानी कि इसका ये इसका सिस्टम है कि जब आप चाय बना रहे हैं, 1 पाव दूध चाहिए तो 1 पाव ही दूध आए घर में और उसके अंदर सीधा आए और चाय में उतर जाए। हाँ, ये होगा क्या? अगर देखें देखें जल्दी बोले। जैसे कि आप हम लोग चाय बना रहे हैं, हमारे पास दूध कम पड़ गया, हम लोग देख रहे हैं फ्रिज में दूध नहीं है, हाँ, उसी वक्त दूध आ गया। उसी वक्त अगर दूध आए ना, यानी एक बंदा पहले से चाय बनाने लगा, दूसरा बंदा दूध लेने गया, दूध लेकर आया, उसमें इन्वेंट्री नहीं होती। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक नहीं होता, यानी कि जस्ट इन पता टाइम। नहीं था। अब ये तो मैंने आपको इस टॉपिक से हट के जस्ट इन टाइम सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया, मुझे उम्मीद है याद हो गया होगा आपको। जस्ट इन टाइम सिस्टम, जो चीज जिस वक्त चाहिए उसी वक्त आए। अब यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का मतलब है इसका। क्या मतलब है कि वकार रीच जुनेद जस्ट इन टाइम, यानी जिस वक्त दरकार था, जिस वक्त चाहिए था, उसी वक्त जो है वकार पहुंचा। रीच जुनेद, जुनेद के पास उसी वक्त पहुंचा जब चाहिए था। यानी अगर वो थोड़ा सा भी मिस करता तो वो निकल जाता। सही है, वो आगे निकल जाता। एज सून एज ही सीज्ड हिज फ्रेंड्स हैंड, जैसे ही उसने सीज्ड मतलब काबू करना या पकड़ना या मजबूती से दबोचना, जैसे ही उसने सीज किया, सीज मतलब लॉक कर लिया, काबू कर लिया, सीज्ड। सीज्ड हिज फ्रेंड्स हैंड। अब देखो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ? फ्रेंड्स हैंड का मतलब क्या हुआ कि ये फ्रेंड का हाथ। जैसे ही उसने पकड़ा, सीज किया, द ब्रांच क्रैक्ड, जो जो शाख थी वो क्रैक हो गई, वो टूट गई। एंड फेल इनटू द वाटर, और गिरी पानी के अंदर। ये इसलिए लिखा है जस्ट इन टाइम, यानी जैसे ही वो शाख टूटी, वो बेआसरा हो गया। उसके बाद शाख का आसरा था, शाख की मदद थी, उसकी हेल्प खत्म हो गई। शाख हेल्प कर रही थी उसको, जो ब्रांच थी ट्री की, वो हेल्प कर रही थी। हाँ, जैसे ही वो खत्म हुई तो जस्ट इन टाइम वकार पहुंच गया, उसी वक्त एन मौके पे आकर यानी वकार कि पहुंच गया। जब सही है, उसने उर्दू में हाथ बोलते हैं एन मौके पे। उसका हाथ पकड़ा, हाँ। वैसे ही टीढ़ी गिरा। हाँ, वैसे ही ट्री गिरी। वो ट्री नहीं गिरा, ट्री उसकी वो जो शाख थी, जो जैसे एक ये छोटी सी देखे, ब्रांच निकली थी ना, एक छोटी सी लकड़ी की, आपने इसको दरख्त में छोटी पकड़ा है। छोटी जो निकलते हैं ना, वो निकली हुई थी, वो टूट गई। जैसे ये बड़ा सा दरख्त होता है ना बेटा, इसके अंदर छोटी छोटी इसकी छोटी छोटी टहनियां और शाखें निकली हुई होती है ना, फिर यूं यूं यूं। ये बड़ा सा दरख्त है, इसके अंदर छोटी छोटी टहनियां निकली होती हैं, उसके अंदर फल लगते हैं। सही है, तो एक शाख लटक रही थी, जैसे उसने ये पकड़ ली देखे, थी। मैंने आपका हाथ पकड़ा, इधर से एक टक की आवाज आ गई। हाँ, ये इस तरह हुआ, इसको इसीलिए लिखा है जस्ट इन टाइम। जैसे ही वो क्रैक हुई, वो नीचे से उसने उसको पकड़ लिया। जुनेद वॉज ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड एंड फेयर। दो चीजों से वो, ट्रेम्बलिंग मतलब कांप रहा था, या वो शिवर होना भी होता है, ट्रेम्बल होना भी कहते हैं, कांप रहा था। विथ कोल्ड यानी सर्दी, ठंडा पानी था, वो बहुत ठंडा था। एंड फेयर, दो चीजें उसको प्रॉब्लम करी थी, क्या? खौफ और सर्दी। वकार हेल्ड हिम टाइटली, वकार ने उसको मजबूती से पकड़ लिया। एंड कंफर्टेड हिम, और उसको आराम दिया। वाइल आसिफ, कंफर्टेड मतलब उसको सुकून दिया, दिलासा दिया कि मैं आ गया हूँ। सही है। वाइल आसिफ पुल्ड देम आउट ऑफ वाटर, जबकि आसिफ जो था, जिसको उसने इंस्ट्रक्ट किया था कि इसको तने के ऊपर बांधो, वो उसने उनको पुल करना शुरू किया, खींचना। खींचना पुल शुरू। कहते हैं खींचना। देम मतलब उन दोनों को, क्योंकि वो तैर के उसके पास पहुंचा था, वो शाख के ऊपर लटका हुआ था। जैसे ही शाख टूटी नीचे से, वकार ने उसको पकड़ लिया। अब दोनों को आसिफ खींच रहा था। क्या, कहाँ खींच रहा था? आउट ऑफ वाटर, टूवर्ड्स द रिवर बैंक, मतलब रिवर का जो साहिल था उसकी तरफ खींच रहा था। अपने टूवर्ड्स सीना कहते हैं तक की तरफ। खींच। टू मैन, दो आदमी। ये देखो, एम ए एन नहीं है, एम ई एन है यहाँ पर, गौर से देखो, ये प्लोरल है। एम ए एन एक आदमी होता है, एम ई एन दो होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। तो यहाँ दो आदमी है, तो एम ई एन। हु आर वॉचिंग, जो देख रहे थे। रैन, रैन का मतलब भागे। किस लिए भागे? टू असिस्ट, उनकी मदद करने। आसिफ, टू असिस्ट आसिफ, आसिफ की हेल्प करने, क्योंकि आसिफ ऊपर खड़े होके खींच रहा था, नीचे वकार कमर पे बांध के अंदर कूदा था, और जुनेद तो फंसा हुआ था, तो उसको पकड़ने के लिए वो गया था। टू असिस्ट आसिफ इन हॉलिंग देम आउट, उनको खींचकर बाहर निकालने के लिए। हॉलिंग देम आउट, खींचकर बाहर निकालने के लिए उन्होंने उसे असिस्ट किया, यानी कि मदद की।
जुनेद वॉज इन अ डेज जुनेद वॉज इन अ डेज एंड शिवरिंग। जुनेद जो था वो बड़ी सर्द हालत में और कांप रहा था। अनकंट्रोलेबली, मतलब कंट्रोल से बाहर था उसके, वो ये इस तरह की हालत थी उसकी। क्विकली यानी कि अचानक, या फौरन, फौरन कहना चाहिए, सडनली होता है अचानक। क्विकली द टू मैन, जो दोनों आदमी थे, लेड हिम डाउन ऑन हिज बैक, उन्होंने उसको लिटा दिया उसकी बैक पर, यानी उसकी जो पुश्त है उसके ऊपर उसको लिटा दिया। वन ऑफ देम, उनमें से एक, वन ऑफ देम, देम का मतलब वो दो, उनमें से एक, वन ऑफ देम, प्लेस्ड हिज शॉल, अपनी उसने शॉल रखी, ओवर जुनेद टू वार्म हिम, जुनेद के ऊपर उसने रखी ताकि उसे गर्म कर दे। वकार प्रेस्ड हिज एब्डोमेन, वकार ने उसके जो पेट है उसको दबाया, टू पंप आउट द वाटर ही हैड swallowed, ताकि वो उसका जो पेट में पानी भर गया है उसको बाहर निकाले। एज जुनेद रिकवर्ड स्लोली, जैसे जैसे जुनेद जो है वो बहाल हो रही थी उसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता, वन ऑफ द मैन, यानी उन आदमियों में से, देखो मैन प्लोरल है, वन ऑफ द मैन यानी आदमियों में से एक ने, टर्न टूवर्ड्स आसिफ एंड वकार, मुड़ा वो आसिफ और वकार की तरफ। अब इन्वर्टेड कॉमा यानी कोई कह रहा है, व्हाई वर यू फिशिंग हियर, डिडंट एनीवन टेल यू इट वाजंट सेफ, व्हाई वर यू फिशिंग हियर, तुम यहाँ क्यों कर रहे थे, मछली क्यों पकड़ रहे थे। डिडंट एनीवन टेल यू इट वाजंट सेफ, किसी ने तुम्हें नहीं बताया था, किसी भी ने भी तुम्हें नहीं बताया था कि ये महफूज नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाया, मैंने पूछ रहा है वो। ही आस्क्ड देम, यानी वो बंदा जो था, वन ऑफ द टू मैन, वो उनसे, उसने उनसे पूछा, आसिफ और वकार से। आसिफ लुक्ड एट वकार रिग्रेटफुली, अब वकार चूंकि मना कर रहा था तो इसलिए आसिफ ने, मतलब पशेमानी के साथ और अफसोस के साथ, और रिग्रेट करना कहते हैं अपनी किए पर अफसोस करना, रिग्रेट उसको कहते हैं, रिग्रेटफुली, या समझ रहे हो बात, अफसोस। सैडली भी हो सकता है, या रिग्रेटफुली। रिग्रेट का लफ्ज हर दफा वहां यूज होता है बेटा, रिग्रेट का लफ्ज वहां यूज होता है जहां पर किसी को अपने किए पर पछतावा हो। रिग्रेट रिग्रेटफुली, क्यों किया। पछतावे के साथ आसिफ ने देखा वकार की तरफ। वी आर सॉरी, अब ये देखो कोई कुछ कह रहा है, वी आर सॉरी, उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ वी आर सॉरी। वकार सेड, वकार ने कहा, सेविंग हिज फ्रेंड्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट, उसने अपने दोस्तों को महफूज किया, सेविंग का मतलब महफूज करना, सेविंग क्या, हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को उसने बचाया, फ्रॉम, किससे बचाया, एम्बेरसमेंट, किससे बचाया, एम्बैरेसमेंट। एम्बेरसमेंट क्या होता है, शर्मिंदगी से बचाया। शर्मिंदगी से। अब देखो ये शॉल लेके बैठा हुआ है, ये नीचे से जोर लगा रहा है, तो मेरा ख्याल है यही जुनेद होगा, हाँ। सही है। और ये ऊपर आसिफ बैठा हुआ होगा, और ये नीचे से वकार उसको जोर लगा के ऊपर बाहर कर रहा है, सही है। सो फ्रॉम एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदगी से बचाने के लिए उसने बस ये कहा कि हम माजरत ख्वाह हैं, वी आर सॉरी। जुनेद वॉज रिलीव्ड एंड थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू तआला दैट ही वॉज सेफ। तो जुनेद जो था वो बहाल हो गया, उसकी जान छूटी, रिलीफ मतलब कहते हैं रिलीफ मिला मुझे, यार मेरी जान छूट गई बोलते हैं ना, रिलीव्ड इसको कहते हैं। जुनेद वॉज रिलीव्ड एंड थैंकफुल, और शुक्रगुजार था अल्लाह सुब्हानहू तआला का, दैट ही वॉज सेफ, कि वो महफूज है। ही वुड ऑलवेज रिमेंबर, वो हमेशा याद रखता था, how his friends Waqar had risked his own life to rescue him from the roaring river. तो ही वुड ऑलवेज रिमेंबर, वो हमेशा याद रखता है इस बात को कि किस तरह उसके दोस्त वकार ने अपनी, हैड रिस्क हिज ओन लाइफ मतलब अपनी जिंदगी को खतरे में डाला, रिस्क हिज ओन लाइफ मतलब ओन मतलब अपनी जिंदगी को, रिस्क मतलब रिस्क में, खतरे में डाला, किस लिए डाला, टू रेस्क्यू, ताकि वो बचाए, टू रेस्क्यू हिम उसे, फ्रॉम द रोरिंग रिवर। अब देखो ये जो लफ्ज है रोरिंग, ये शेर के लिए यूज होता है, शेर नहीं होता, शेर का रोर करता है वो, तो रोरिंग मतलब बहुत ही खतरनाक चिल्लाते हुए रिवर से उसको बचाया था, सही है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर खत्म हुआ, उसकी एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो गई। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।